Okay, so good afternoon once again. And first of all, we'll discuss basis of accounting. There are two bases of accounting, cash basis and accrual basis. Let us understand what we mean by this. You have studied accrual concept? Yes, sir. What does this accrual concept state? Tell me. Sir, that we should record a transaction when it is entered into and not when the settlement takes place. And what do we mean when it is entered into? Sir, it means that if the sales have been done or services have been rendered, then they have to be recorded at the time of the sales being done and services being rendered, and not when the revenue has been collected. Yes, absolutely right. So we should, accrual concept says revenues, or we also call them incomes. Incomes and expenses should be recorded when they become due, irrespective of the date of actual payment. Now let us understand this with the help of this example. First example, as you can read, Prashita, read this first example. On 21st May, advance ₹1,000 paid to supplier and he delivered the goods on 26th May. So what has happened is on 21st May, we went to our supplier to buy certain goods. The goods were not ready at that time. So we paid a sum of ₹1,000 and placed the order. The supplier said, okay, I'll deliver the goods within 2-3 days. And finally, he delivered the goods on 26th May. Now, two entries are involved in this transaction. So I was saying, on 21st May, we paid the amount and we received the goods on 26th May, after 5 days. So two entries are required in this. One is entry for payment. Whenever we purchase anything, two entries are involved. One is for payment, the other is for expense, purchases for the goods, right? Purchases we know is an expense. So if we follow cash basis say we should record the incomes and expenses also on the date of payment only. Okay. So if we are following cash basis, we will record the entry for payment on which date? 21st May, जिस दिन हमने पेमेंट की है. और परचेज की एंट्री हम किस दिन करेंगे? 21st May को या 26th May को? कैश बेसिस पे 21st को ही. जैसे ही हमने पेमेंट कर दी, उसी दिन हम एक्सपेंस दिखा देंगे. दैट परचेज एक्सपेंस is 1,000 rupees. We will record it. ठीक है. But accrual concept says we should not do this. पेमेंट आप पेमेंट वाले दिन दिखाओ, लेकिन एक्सपेंस या इनकम को कब दिखाओ? जब वो ड्यू हो जाए. एंड व्हेन इज एक्सपेंस ड्यू? एक्सपेंस इज ड्यू व्हेन वी हैव रिसीव्ड द गुड्स और वी हैव रिसीव्ड द सर्विसेज. व्हेन डज इनकम बिकम ड्यू? व्हेन वी हैव डिलीवर्ड द गुड्स टू द कस्टमर और वी हैव रेंडर्ड द सर्विसेज टू द कस्टमर. ठीक है. तो अगर हम एक्रूअल बेसिस पे चलेंगे तो पेमेंट की एंट्री तो 21st में कोई होगी, दोनों बेसिस में, क्योंकि पेमेंट 21st को हो रही है. बट परचेज की एंट्री, अपने एक्सपेंस की एंट्री हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट में किस डेट पे करेंगे? 26th में. वेरी गुड. ऑन द डे द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू अस, वी हैव रिसीव्ड द गुड्स. So that day our expense becomes due. We will record it on 26th May. So cash basis is only a theoretical concept. We don't have to follow it. We follow accrual concept only. ये सिर्फ accrual basis को समझने के लिए cash basis का concept है, theoretical है जो सिर्फ. Practically we follow accrual basis only. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is this example clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let us take one more example. Suppose on 27th May, Romil, read this one. On 27th May, goods were to be 1,000 supplied to customer and he paid the amount on 30th May. On 30th May.
तो अगर हम कैश बेसिस पर चल रहे हैं, कैश बेसिस फॉलो करें, तो हम इनकम जो हो रही है हमारी सेल की इनकम, वी आर सेलिंग गुड्स सो इट इज एन इनकम, वो उस इनकम को हम किस डेट पे दिखाएंगे? 30th में। 30th में, वेरी गुड। जिस दिन हमने उसकी हमें अमाउंट मिला है, द कस्टमर हैज पेड द अमाउंट, वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट, सो income we will show on 30th May. And what about the receipt of the amount? What date? 30th May. 30th में, क्योंकि 30th May को हमें पैसे मिले हैं. Now let's talk about accrual. सर बट सेल तो 27th को ही है ना, रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू मिलना या फिर अमाउंट रिसीव होना, वो 30th को हुआ है, बट सेल तो हमारी 27th को ही है ना. अभी हमने किस बेसिस पे डिस्कस किया? कैश बेसिस पे. कैश बेसिस में हम क्या करते हैं? एक्सपेंस या इनकम को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब पैसे मिल जाते हैं. जब पैसे मिल जाते हैं या पैसे पे हो जाते हैं, है ना. तो कैश बेसिस पे सेल्स की एंट्री भी 30th में कोई होगी, क्योंकि पैसे तो हमें 30th में को मिले. यस सर. इज इट क्लियर नाउ? तो सर कैश बेसिस पर तो दोनों ही केसेस में एक ही डेट होगी, फिर तो जिस दिन पैसे मिलेंगे. कैश बेसिस में हमेशा एक ही डेट होगी, पेमेंट की भी और एक्सपेंस की भी. इसी तरह से इनकम की भी और रिसीट की भी कैश बेसिस में हमेशा सेम डेट होगी. और वो कौन सी डेट होगी? जिस दिन अमाउंट पे हुआ है. क्लियर? यस सर. अब आते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे. एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? सेल्स को कब रिकॉग्नाइज करो? जब वो ड्यू हो गई. ड्यू कब हो गई? जब हमने गुड्स कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिए. ठीक है. डिलीवर करने का ये मतलब नहीं है आपने गुड्स भिजवा दी है तो आपको भी सेल हो गई मेरी. तो कस्टमर का एक्सेप्ट करना भी जरूरी है. हमने डिलीवर कर दी और कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिए गुड्स, तो हमारी इनकम ड्यू हो गई. किस डेट पे ड्यू हो गई? 27th में. So income will be recorded on 27th May. Sales will be recorded on 27th May. But the amount received will be recorded on 30th में. 30th May. Is this concept clear? Cash basis and accrual basis. Yes sir. ठीक है. तो cash basis, I am repeating, is only a theoretical concept just to understand the significance of accrual basis. Actually, we have to follow accrual basis only as per the accrual concept. So we have to record expenses and incomes whenever they become due. The entry for payment will be when cash goes or comes, but the income or expense entry will be on the date when the income or expense becomes due. The expenses, again I am repeating, become due as soon as we have received the goods or services and accepted. The incomes become due as soon as we have delivered the goods or services and the customer has accepted. Is it clear? Yes sir. Yes sir. Yes sir. This completes our 4th chapter, that is basis of accounting. ठीक है. Any doubt in this? Anyone? No sir. No sir. No sir. Okay. So now we move on to chapter number 6. We are leaving chapter number 5. Why are we leaving chapter number 5? Chapter number 5 is accounting equation. Accounting equation, if we will do it now, it will be difficult to understand because बहुत सारी ऐसी terms आएंगी जो और ऐसे concepts आएंगे जिनके बारे में अभी हमें मालूम भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं है. तो accounting equation वाला चैप्टर हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद. तब तक हम वो सारी टर्म्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके होंगे, तो तब ये चैप्टर बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. अगर अभी हम उसे करते हैं तो इस चैप्टर को करने में 5-6 दिन लग जाएंगे और तब भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे. बाद में करेंगे तो ये 1-2 दिन में चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा और सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी. ठीक है. सो दैट इज व्हाई 5th chapter we are leaving for the time being. We will do it after financial statements. We are moving on to chapter 6. Clear?
Is it clear? Yes, sir. Okay. Now what is chapter 6? Chapter 6 is rules of debit and credit. ठीक है, आपने एक ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा है. क्या कहता है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल? Sir, for every debit there is an equivalent credit in one or more accounts and vice versa. Very good. That every transaction has two or more effects in such a way that one effect we call it debit, the other effect we call it credit. Debit and credit are always equal. Okay, so every transaction will have two effects. Let us read this example. For example, if I sell you a pen for ₹20, for me it means increase of ₹20 in cash and a decrease of a pen of ₹20. Am I right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, from your side, if we see this transaction, an increase, you are getting an increase of a pen. You are getting a pen which you did not have earlier, worth ₹20. And what is decreasing from your side is cash ₹20. Is it right? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे लिए भी दो एस्पेक्ट्स हैं, इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन पेन, दोनों ₹20. और आपके लिए भी दो एस्पेक्ट्स हैं. कौन सी दो एस्पेक्ट्स हैं? इंक्रीज इन पेन एंड डिक्रीज इन कैश, दोनों ₹20 इक्वल. इनमें से एक को हम कहते हैं डेबिट, दूसरे को हम कहते हैं क्रेडिट. नाउ बिफोर वी डिस्कस फर्दर, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग. कुछ स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि इंक्रीज का मतलब या प्लस का मतलब डेबिट है और डिक्रीज का मतलब या माइनस का मतलब क्रेडिट है. ऐसा नहीं है. कुछ ट्रांजैक्शंस में इंक्रीज या प्लस का मतलब डेबिट होगा और डिक्रीज का मतलब क्रेडिट होगा. कुछ और ट्रांजैक्शंस में डिक्रीज के केस में डेबिट होगा, इंक्रीज के केस में क्रेडिट होगा. वो कैसे, अभी हम डिस्कस करेंगे. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो क्लियर हो जाएगा. तो ये कॉन्सेप्शन माइंड में नहीं रखनी है आपने कि डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का माइनस. डेबिट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, क्रेडिट प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बट होंगे दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और इसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम. जब हम हर ट्रांजैक्शन की दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट भी क्रेडिट भी, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. क्लियर? Yes, sir. Principles or characteristics of double entry system. Every transaction will have two or more, will affect two or more accounts in such a way that debit and credit are equal. Both personal as well as impersonal aspects. Personal मतलब persons के जहाँ involvement होती है वहाँ person के account भी आते हैं. जहाँ पर कोई गुड या एसेट की बात हो रही है उसे हम कह देते हैं impersonal, वो accounts भी आते हैं. Recording is done according to certain rules, which we will discuss just now. At the end of the year, generally, a trial balance is prepared. It can be prepared at any time, but generally prepared at the end of the year. Trial balance क्या होता है? एक statement होती है जिसमें हम सारे accounts के balances लिख देते हैं year के end में. तो उसमें क्या होता है? कुछ के debit balance होंगे, वो debit वाले column में लिख देंगे. कुछ के क्रेडिट बैलेंस होंगे, वो क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देंगे. एंड में दोनों का टोटल करेंगे कॉलम्स का, तो दैट टोटल विल बी इक्वल. व्हाई? बिकॉज इन एवरी ट्रांजैक्शन डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. तो उससे हमें काफी हद तक एश्योरेंस मिल जाती है कि हमारी अकाउंटिंग में कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं है. दैट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग दैट ट्रायल बैलेंस. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, So, sir. जरूरी है हर वक्त डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. हाँ जी, जरूरी है. ठीक है, अब आए रूल्स. अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डिस्कस करते हैं. इसके दो अप्रोचेस हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की. एक ट्रेडिशनल पुरानी अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है. तो पहले हम मॉडर्न अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं. मॉडर्न अप्रोच में हम सारे अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स.
There are many and many accounts, but we categorize them into 5 main types. First is assets. Assets में रूल क्या है? डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज. ठीक है, ये टेबल अगर आपने बना लिया है ऑलरेडी तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी साथ साथ बना लो. Assets में रूल इज डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज. राइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज हमने एक फर्नीचर, लेट अस से एक टेबल खरीदी, तो फर्नीचर खरीदा लेट अस से 1000 रुपीज का. ठीक है, तो क्या चीज इंक्रीज हो रही है हमारे लिए? एसेट. कौन सा एसेट? फर्नीचर. फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है. वेरी गुड. अगर हम उसको सेल नहीं करते, मतलब वो हमारे लिए गुड नहीं है, तो हाँ एसेट है. ठीक है, तो फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को डेबिट. वेरी गुड, डेबिट. और हमारा डिक्रीज क्या चीज हो रही है इस ट्रांजैक्शन? कैश. कैश डिक्रीज हो रहा है. कैश भी एसेट है. ठीक है, Yes, एसेट्स sir. हमने डिस्कस किए थे ना, तो कैश भी एसेट Yes, है. sir. वो डिक्रीज हो रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे. तो इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. Credited. अब यहां पर एक चीज और समझनी है आपको. क्रेडिट वर्ड जो है, दो मीनिंग है इसके. ठीक है, एक तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार. व्हेन वी बाय और सेल एनीथिंग ऑन क्रेडिट मींस वी हैव परचेज्ड इट और सोल्ड इट विदाउट पेमेंट. हमने उधार पे खरीदा है या बेचा है, पेमेंट बाद में होगी. और दूसरा क्रेडिट का मतलब होता है ये डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट, कि हर अकाउंट की दो साइड होती हैं, हर ट्रांजैक्शन की दो साइड होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट. तो क्रेडिट का ये भी मतलब है. ये सर इस पे इसका कोई मीनिंग है या फिर नहीं है? मतलब इसका डेबिट और क्रेडिट का कुछ मीनिंग भी होता है या फिर बिल्कुल यही मीनिंग मतलब? है. बिल्कुल मीनिंग है. जैसे हमारी एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है. ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है. ऐसे ही अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं. सर ठीक है, अब ये फर्क पड़ सकता है कि किस टाइम मेरे लेफ्ट साइड में क्या है, किस टाइम मेरे राइट साइड में क्या है. ठीक है, जरूरी नहीं है लेफ्ट साइड में हमेशा प्लस होगा और राइट साइड में हमेशा माइनस होगा, या राइट में हमेशा प्लस होगा लेफ्ट में हमेशा माइनस होगा. वो जरूरी नहीं है. वो अभी इन रूल से हमें क्लियर होगा. पहला रूल क्लियर है एसेट्स वाला? यस Yes, sir. Let us take another example. Suppose building sold. तो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, पहले हमने आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फिर देखना है कौन से अकाउंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है. अब इस ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? बिल्डिंग सोल्ड. बिल्डिंग और कैश. एक्सीलेंट. बिल्डिंग क्या हो रही है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज. Yes. और बिल्डिंग एसेट है. यस सर. तो बिल्डिंग को क्या करेंगे? क्रेडिट. क्रेडिट. और कैश इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज. Increase. और कैश भी एसेट है. यस सर. Yes. तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट. Debit. कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट. ये एग्जांपल क्लियर? यस सर. Yes, sir. नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट्स आर इनकम्स एंड गेन्स. ये भी हमने टर्म्स पढ़ी हुई हैं, इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है, इसमें रूल होता है डेबिट डिक्रीज क्रेडिट इंक्रीज. अब इसमें देखो ऑपोजिट हो गया, डेबिट डिक्रीज क्रेडिट इंक्रीज. सपोज सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, तो Yes. कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए? सैलरी और कैश. सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट. कैश अकाउंट. सैलरी अकाउंट, अच्छा पहले हम बात सर वो करते तो हैं, एक्सपेंस का काइंड हो गया ना. में आएगा एक्सपेंस वाले में. अभी और कोई एग्जांपल लेते हैं. सपोज गुड सोल्ड. यस सर. गुड सोल्ड, तो तो इसमें सेल्स अकाउंट गुड्स और एंड कैश. कैश अकाउंट. ठीक है, सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट. सेल्स अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? सर इनकम. इनकम है. वेरी गुड. ठीक है, सेल्स बढ़ रही है कम हो रही है?
बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। इनकम के रूल के हिसाब से हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे। वेरी गुड। और कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? कम हो रहा है। कम हो रहा है। और वो कम हो कौन रहा सा है। टाइप का अकाउंट है? एसेट। एसेट। और एसेट में डिक्रीज को, सॉरी इंक्रीज को डेबिट करते हैं। कैश बढ़ रहा है ना हमारा, सेल हो रही है तो। यस सर। तो कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि वो एसेट है, बढ़ रहा है। सेल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो इनकम है, वो भी बढ़ रही है। सो डेबिट sir. कैश अकाउंट, क्रेडिट सेल्स अकाउंट. Is this clear? Yes sir. Let's take another example. Rent received. सर रेंट इनकम है, बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। रेंट इनकम है, बढ़ रही है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो रेंट रिसीव और को कैश भी बढ़ रहा है कैश तो कैश एसेट है, अकाउंट बढ़ रहा डेबिट है हो तो जाएगा। डेबिट हो जाएगा। सो कैश अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। क्लियर यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Third types of accounts are expenses and losses. इसमें रूल क्या है? डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। अब इसमें वो एग्जांपल आएगा सैलरीज वाला। सपोज सैलरीज पे की हमने एम्प्लॉइज को, तो कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और किस क्या होगा बताओ? एक्सपेंस एंड कैश अकाउंट। Salary and cash account. सैलरी अकाउंट जो कि Salary एक्सपेंस account और कैश अकाउंट। एंड कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट करेंगे। Debit. और कैश क्या है? घट रहा है, एसेट है, क्रेडिट होगा। एसेट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। सो सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। सिमिलरली सपोज रेंट पेड। सर एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। वेरी गुड। रेंट अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि एसेट कम हो रहा है। ठीक है। नाउ वी कम टू फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंट्स। दीज आर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में रूल है डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। क्या रूल है? डेबिट का डिक्रीज और क्रेडिट का इंक्रीज। यस। सपोज लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हुए? सर लोन और बैंक। लोन और बैंक। लोन इज अ लायबिलिटी, बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ But रही बढ़ है। रही है। लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करना है? क्रेडिट। क्रेडिट। बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट एसेट है, तो उसे क्या करना है? यस सर। डेबिट। डेबिट। सो बैंक Debit. अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट क्रेडिट। जब हम इस लोन को रीपे कर देंगे तब? लाइबिलिटी माइनस हो रही है और एसेट भी मतलब वेरी गुड। लाइबिलिटी कम हो रही है और कम हो एसेट रही भी है कम हो और रहा है। बैंक अकाउंट जो एसेट है वो भी कम हो रहा है। लायबिलिटी कम होने पर क्या करेंगे? डेबिट। लोन अकाउंट डेबिट। और बैंक अकाउंट कम होने पे क्रेडिट। सॉरी एसेट है तो डेबिट। क्रेडिट। ठीक है। फिफ्थ टाइप ऑफ अकाउंट्स आर कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जो अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में। ठीक है। इसमें भी लायबिलिटी वाला रूल ही चलता है। डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट इंक्रीज। क्लियर? सपोज कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, व्हिच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड? कैपिटल अकाउंट और कैश कैश अकाउंट। अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट Yes, भी sir. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बढ़ रहा है, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश बढ़ रहा है बिजनेस में, और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि कैपिटल भी बढ़ रही है। इज दिस क्लियर? यस सर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन। नाउ वी कम टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है, आप चाहे मॉडर्न क्लासिफिकेशन फॉलो करो या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, दोनों केस में रिजल्ट सेम ही आएगा। कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से को क्रेडिट करना है, दैट विल ऑलवेज बी द सेम। ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस ट्रेडिशनल अप्रोच नाउ।
इसमें हम सारे अकाउंट्स को तीन ही कैटेगरीज में बांटते हैं, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। जो हमारे एसेट अकाउंट थे उनमें से मेजॉरिटी अकाउंट्स होते हैं रियल अकाउंट्स। ठीक है, रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ ऑल एसेट्स एक्सेप्ट बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम्स। इन चार को छोड़कर बाकी सारे एसेट्स रियल अकाउंट होते हैं। ये चार क्यों नहीं होते, क्योंकि ये चारों पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, अभी पर्सनल अकाउंट पे चलेंगे तो और क्लैरिटी आएगी इस पे। सो रियल अकाउंट्स आर बेसिकली मोस्ट ऑफ द एसेट अकाउंट्स। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. बोल दिया करो जल्दी से यस सर या नो सर बोल दिया करो, अदरवाइज मुझे लगता है पता नहीं आवाज जा रही है या नहीं जा रही है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर? Yes, sir. ओके, सो रियल अकाउंट्स में रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या रूल है? Debit what comes in, credit what goes out. वेरी गुड। अगेन लेट अस से फर्नीचर परचेज्ड, तो फर्नीचर इज कमिंग इन, डेबिट फर्नीचर अकाउंट। कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट कैश अकाउंट। बिल्डिंग सोल्ड, so building is going out, credit. Cash is coming in, debit. Clear? Yes, sir. Nominal accounts. अब ये जो दूसरी दो कैटेगरीज थी इसमें मॉडर्न अप्रोच में, इनकम, गेन, एक्सपेंस एंड लॉस, इन दो कैटेगरीज को मिलाकर एक कैटेगरी बन गई, ट्रेडिशनल में होती थी, वो कहलाती थी नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल मतलब जो सिर्फ नेम सेक है, जो एक्चुअली कोई चीज नहीं है, सिर्फ नेम के लिए है, कुछ खर्चों को, कुछ इनकम्स को नाम दे दिया गया है। तो इसमें रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या रूल है? Debit all expenses and Debit all losses, expenses, credit all losses, incomes credit and all gains. incomes and gains. एब्सोल्युटली। सपोज सैलरी पेड, तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, तो सैलरी को क्या करेंगे? डेबिट। Debit. कैश जा रहा है, कैश रियल अकाउंट है तो क्रेडिट। सेकेंड एग्जाम्पल, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इज एन Income. इनकम, तो इनकम को करते हैं क्रेडिट। और कैश आ रहा है, कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तीसरे टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं पर्सनल अकाउंट्स। इसमें लायबिलिटीज और कैपिटल आ जाते हैं, और उसके अलावा जो हमने रियल अकाउंट में जो एसेट छोड़ दिए थे, कौन से छोड़ दिए थे? डेटर्स, Prepaid expenses, debtor, bank और accrued income. यस, ये चारों भी आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि डेटर कौन है? वो पर्सन जिनसे हमसे पैसा लेना है। क्रेडिटर कौन है? वो पर्सन जिन्हें हमने पैसा देना है। ठीक है, एक्रूड इनकम क्या है? जिनसे पैसा मिलना है। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग क्या है हमारे? अगेन जिनको हमने पैसा देना है। ठीक है, तो ये सारे पर्सनल अकाउंट है, और बैंक भी पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल सर अकाउंट जो एक्सपेंसेस होंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट में थोड़ी आएंगे, वो तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना। आउटस्टैंडिंग भी आएंगे, प्रीपेड भी आएंगे। सर पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होएगा ना। दोनों होंगे, प्रीपेड एक्सपेंस भी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी। जो एक्सपेंस अभी का अभी पे हो गया वो एक्सपेंस है। ठीक है, जो प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है वो पर्सनल है। इसी तरह से जो इनकम अभी के अभी रिसीव हो गई वो इनकम है। ठीक है, लेकिन जो एक्रूड है या रिसीव्ड इन एडवांस है वो पर्सनल अकाउंट है। ये अभी और डिटेल में थोड़ा आगे करेंगे अभी हम। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट्स में रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यस, सपोज 2000 रुपीज पेड टू रोमिल, तो अब एक रोमिल का अकाउंट आ गया। रोमिल क्या हुआ इसमें, रिसीवर या गिवर? रिसीवर। रिसीवर, तो हम करेंगे रोमिल को डेबिट, और कैश हमारा जा रहा है रियल अकाउंट तो उसको करेंगे क्रेडिट। सपोज रुपीज 3000 रिसीव्ड फ्रॉम हरसिमर। अब हरसिमर रिसीवर है या गिवर है? गिवर। तो उसे गिवर। करेंगे हम क्रेडिट।
Credit. credit. और कैश हमारा रियल अकाउंट आ रहा है तो हम उसे करेंगे डेबिट। यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes sir. क्लियर है सबको? सर बैड डेट्स किस में आएगा? बैड डेट्स इज अ लॉस, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में आ जाएगा, लॉस, डेबिट। ओके सर। ठीक है? यस सर। ओके, अब हम चलते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम देखते हैं डेबिट या क्रेडिट किसको करना है, सबसे पहले हम देखेंगे रियल में अगर ट्रांजैक्शन सेटल हो रही है तो रियल के आगे हमने देखना ही नहीं है। अगर रियल में डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहे फिर हम नॉमिनल भी देखेंगे। नॉमिनल तक मैच हो गए तो भी ठीक है, नहीं मैच हुए तब हम पर्सनल अकाउंट देखेंगे। अब ये मैं जो कह रहा हूं इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं ट्रांजैक्शन आपको देता हूं, सैलरी पेड टू लेट अस से रोनित, सैलरी पेड टू रोनित। तो इसमें क्या किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना चाहिए? सर सैलरी को क्रेडिट करेंगे। सैलरी को क्रेडिट करेंगे, क्यों? वो इनकम है क्या? नहीं, सैलरी तो एक्सपेंस है, तो सैलरी को डेबिट करेंगे। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। सैलरी को डेबिट करेंगे और Yes, sir. कैश को क्रेडिट करेंगे। अब कोई कहे कि रोनित को हम डेबिट क्यों नहीं कर देते? क्योंकि वो रिसीवर है। तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रियल और नॉमिनल में हमारी ट्रांजैक्शन पूरी हो गई, तो फिर हमने पर्सनल अकाउंट को देखना ही नहीं है। हमारी ट्रांजैक्शन जब रियल नॉमिनल में सेटल हो गई तो हमने पर्सनल को देखना ही नहीं है। तो रोनित, लॉजिकली देखा जाए तो रोनित को भी डेबिट कर सकते हैं अगर हम पर्सनल का रूल देखें, रिसीवर, लेकिन वो नहीं देखना। अगर हमारी रियल और नॉमिनल में ट्रांजैक्शन सेटल हो रही है तो एंट्री होगी सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट अप टू हियर? ओके, रियल अकाउंट हमने डिस्कस किए, ये दो तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल हमें पता है जिन्हें देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनटेंजिबल जिन्हें देख और टच नहीं कर सकते। ठीक है? टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स हमने डिस्कस किए थे, वही है ये। पर्सनल अकाउंट्स में आपको कह रहा था तीन तरह के होते हैं। एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, जो नेचुरल पर्सन है लाइक मी, यू, जहां पे भी ह्यूमन बींग्स का नाम आ गया, मोहन अकाउंट, सुनील, रश्मि, सोनिया, रोमिल, हरसिमर, पार्थ, लवन्य, ये सारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हैं। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ फर्म्स, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस लाइक एनकेबीपीएस, टाटा मोटर्स, एमटीएनएल। बैंक अकाउंट भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है क्योंकि बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। इज इट क्लियर? Yes, sir. कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, वो बैंक को रियल अकाउंट में कर लेते हैं कवर, रियल में नहीं आता, बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है। तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसमें वो चारों आ जाते हैं, देखो जो मैं आपको बता रहा था, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है हमारी, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने किसी को देना है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम हमें पहले मिल गई है, उसकी गुड्स या सर्विस अभी हमने देने हैं, तो ये भी एक लायबिलिटी है। एक्रूड इनकम्स, ये हमारे एसेट होते हैं कि हमें इनकम ड्यू हो गई है, मिली नहीं है, मिलनी बाकी है अभी। ठीक है? जैसे रेंट मिलना था हमें, ड्यू हो गया लेकिन अभी टेनेंट ने दिया नहीं, तो दैट इज एक्रूड इनकम, दैट इज एन एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस अगर हमने पहले से पे कर दिया है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम हम ईयर के एडवांस में पे कर देते हैं, तो दैट इज आल्सो एन एसेट। तो ये चारों जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सैलरी नॉमिनल है लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। ठीक है? ऐसे ही रेंट रिसीव्ड नॉमिनल है, इनकम है, लेकिन एक्रूड रेंट हो या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हो तो वो हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? Sir, outstanding liability का एग्जांपल देना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सपोज सैलरी ड्यू हो गई मंथ की लेकिन आपने पे नहीं की, तो वो अब उसकी आप एक एंट्री तो करोगे एक्सपेंस की, सैलरी आप क्या एंट्री करोगे? सैलरी अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, ड्यू हो गया। क्रेडिट किसको करोगे? कैश चला जाता तो कैश को क्रेडिट कर देते, बैंक से पैसे चले जाते तो बैंक को क्रेडिट कर देते।
लेकिन अब उनमें से तो कुछ नहीं हुआ, हम क्रेडिट करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट को, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। Okay, sir. क्लियर? Yes. एनी डाउट एनीवन?